भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने टैंक बंद पर उनके मुजस्समे को फूलों की माला चढ़ाकर खराजन अकीदत पेश किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर पूनम प्रभाकर, MP अनिल कुमार यादव, साबिक MP अंजना कुमार यादव और साबिक वजीर मोटकोपली नरसिम्हुलू भी मौजूद थे और उन्होंने भी अकीदत पेश की। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गिग वर्कर्स की फलाह व सलामती के लिए तैयार करदा मुजव्वज़ा बिल को फौरी तौर पर अवामी राय के लिए जारी करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की तजावीज़ और एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए बिल का हतमी मुसव्वदा 25 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाए। ये बिल गिग वर्कर्स को मुलाजमत की सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और दीगर हुकूक फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वज़ीर आला ने वाज़े किया कि यह कानून 1 मई यौम मज़दूर पर नाफिज होना चाहिए और मुल्क के लिए एक मिसाली कानून बनना चाहिए। 2 जून को हर मंडल में राजीव युवा विकास स्कीम के मुस्तहकीन को दस्तावेज़ात फराहम करेंगे। इसके बाद 3 से 7 दिन तक उन्हें तरबियती क्लासेस दी जाएंगी। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क జూన్ 2వ తారీఖు నాడు ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మండలాల వారీగా శాంక్షన్ లెటర్లు ఇస్తూ 9వ తారీఖు లోపల అన్ని మండలాల్లో శాంక్షన్ లెటర్స్ అందించే కార్యక్రమం కూడా అయిపోతుంది। శాంక్షన్ లెటర్లు ఇచ్చిన తర్వాత వారు ఎంచుకున్నటువంటి స్వయం ఉపాధి పథకానికి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్కి ఒక కనీసం 3 రోజులు తగ్గకుండా వారం రోజులు ఉండేటట్టుగా ఒక ట్రైనింగ్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు ఎంచుకున్న పథకాన్ని గ్రౌండింగ్ చేసేటువంటి వ్యవస్థని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి పెట్టింది। SC तबके की दर्जाबंदी मुकम्मल होने तक नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी नहीं करने चाहिए, इसीलिए जानबूझकर नोटिफिकेशंस जारी नहीं किए गए। वजीर आतम कुमार रेड्डी ఆగస్ట్ 2024 ఫస్ట్న ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన ఇచ్చినాము। ఇప్పటి నుంచి ఈ ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ విషయంలో తుది నిర్ణయం జరిగే వరకు ఏ నోటిఫికేషను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ మా ప్రభుత్వం ఇవ్వబోదు అనే ఒక నిర్ణయం ప్రకటించి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు। कांग्रेस पार्टी की आमला कमेटी का इजलास कल नवोटेल होटल एयरपोर्ट के करीब में सुबह 11 बजे मुनक्किद होगा, जिसमें सुना बीइस्म भो भारत, SC दर्जाबंदी, इंदिरामा मकानात और BC रिजर्वेशन जैसे मौज़ूआत पर बहस होगी। वजारती उहदे के बारे में कमेटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की राय उनकी ज़ाती राय है। जहां तक मुझे मालूम है, जाना रेड्डी किसी और ने फुला को वजीर न बनाने की बात नहीं की। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ప్రజాక్షేత్రంలో పనిచేసేవారు ఒక కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడు ఉండి ఇంకో సభ్యుడు రాకూడదని లేదు। ప్రజల మన్నన పొందినప్పుడు ఎంతమందిని రావచ్చు, బట్ అవకాశాలు ఎంతమందికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలన్నది సమిష్టిగా నిర్ణయిస్తాం। ఈ సన్నబియ్యం, భూభారతి, SC వర్గీకరణ, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, BC రిజర్వేషన్ పైన రేపు కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీ సమావేశం పొద్దున ఉదయం 11 గంటలకు జరగనుంది। ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద గల నోవాటెల్ హోటల్లో రేపు 11 గంటలకి కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశం। ఈ 4-5 అంశాల మీద చర్చ, ఇంత బహత్తరమైన కార్యక్రమాలు తీసుకున్న దృష్ట్యా మా శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, పార్లమెంటు సభ్యులు, కాంగ్రెస్ శ్రేణులంతా కూడా ఈ బహత్తరమైన కార్యక్రమాల్ని ప్రజలకు తీసుకునే విధంగా చర్చ ఉంటుంది। రేపు మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు, రేపు ఉదయం 11 గంటలకు నోవాటెల్ హోటల్లో కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీ సమావేశం ఉంటుంది। ఈ సమావేశంలో శాసనమండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు పాల్గొంటారు। ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు అందరూ కూడా పాల్గొంటారు। BRS BJP समेत तमाम पार्टियां छोड़कर वापस आने वाले आज वजीर का ओहदा मांग रहे हैं। कांग्रेस जलसे में डिप्टी CM भट्टी की मौजूदगी में MLA विवेक और MP विनोद पर मुतनाज़ा रिमार्क्स किए MLA प्रेम सागर राव ने। जो लोग पार्टियां छोड़कर वापस आए वही आज मुझे निशाना बना रहे हैं। एक खानदान मुझे वजीर बनने से रोकने के लिए मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है।
जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब मैं पार्टी के साथ खड़ा था। काबीना में तौसी के वक्त मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला के साथ नाइंसाफी न की जाए। मंचिर्याल MLA प्रेम सागर राव। సారీ ఫర్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఒకటే నిమిషం మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ అన్ని వేదికలలో ఇంద్రవెల్లికి ఏది కానివ్వండి, మంచిరాల వేదిక కానివ్వండి, పాదయాత్ర కానీ ఎక్కడ కానీ ఒకటే మాట్లాడడం జరిగింది. 76 సంవత్సరాల నుంచి మా ఉమ్మడి జిల్లాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి, ఇవాళ గడిచిన 25 సంవత్సరాల నుంచి వాయిస్లెస్ పీపుల్, ఆదివాసీలు కానివ్వండి, దళితులు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళతో ఉన్న మైనార్టీస్ కానివ్వండి, ఆదివాసీల గొంతులేని వాళ్ళకు గడిచిన 25 సంవత్సరాల గొంతు నేను చేస్తున్నా. ఇవాళ నా గొంతు నొప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఇవాళ మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, పార్టీని కష్టకాలంలో ఎవరు కాపాడుకున్నాడు, పార్టీ పెట్టుకుని ఎవరు చేసిండ్రు, ఇన్నోవెల్ మీటింగ్ ఎవరు పెట్టిండ్రు, కరిగారు మీటింగ్ ఎవరు పెట్టిండ్రు, వీళ్ళంతా కరిగారు మీటింగ్ ఎక్కడ పోయిండ్రు. ఇవాళ ఇన్నోవెల్ మీటింగ్ మంచిగా రోజులు లేరా, ఈ జిల్లాలో ఉన్న ఆదివాసులు రాలేదా, అన్ని మాటలు బదలొచ్చిండ్రు. మీరు మాట ఇవ్వడం జరిగింది, మీరు ఎవరికి చెప్పినా నాకు బాధలేదు. ఒక్కరు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, నాకు అన్యాయం జరుగుతున్న భరిస్తా, కానీ మా ఉమ్మడి జిల్లాకు అన్యాయం జరిగేటప్పుడు భరించే ప్రసక్తే లేదు, ఏ పరిస్థితుల్లో భరించాం. దానికోసం ఇది ఉద్యమాల గడ్డ. రాష్ట్రంలో ఉద్యమాలు 1970 నక్సలైట్ ఉద్యమం కానీ ఉద్యమాలకు ఇది పూరిటి గడ్డ. ఈ గడ్డ నుంచే ఉద్యమాలు వేసినాయి. కాబట్టి ఇవాళ నిన్నొచ్చి మొన్నొచ్చి ఉన్న పార్టీలను తిరిగొచ్చి పార్టీలో ఉండి 7 రోజులు బెల్లంపల్లి ఒక పాదయాత్ర చేస్తే కనీసం 7 నిమిషాలు కూడా రాలేదు. వాళ్ళు ఇవాళ మంత్రి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ ఆ దినం ఖార్గే గారి సభకు కూడా రాలేదు. కనీసం మంది తెచ్చు సంగతి వేరు, వాళ్ళు కూడా మంత్రి పదవి అడుగుతారు. మొత్తం టీఆర్ఎస్ 2 సార్లు, బీజేపీ అన్ని పార్టీలు తిరిగి వచ్చినా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇవాళ మంత్రి పదవి అడుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఒక కుటుంబంలో 3 అయిపోయినాయి, ఇంకోటి చేస్తే జిల్లాను కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు దత్తత చేసి అమ్మజేయింది. అప్పుడు కానీ ఈ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లా అనేది తెలుస్తుంది మీకు. ఇవాళ నా ఆదివాసీలు, నా దళితులు, నా మైనార్టీ సోదరులు గొంతులేని వాళ్ళ గొంతు నేను ఉన్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరి గొంతుకనే ఉన్నా. నా గొంతు కొడిస్తే వాళ్ళందరి గొంతులు పోతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కోసమన్నా దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ఏమన్నా బాధ కలిగిస్తే క్షమించవాలి. పెద్దలు శ్రీరావు గారు మాట్లాడుతున్నారు. वरंगल में होने वाली BRS रजत उत्सव सभा को ऑटो ड्राइवर यूनियन की हिमायत। वरंगल में मुनक्किद होने वाली BRS भारत राष्ट्र समिति रजत उत्सव सभा को ऑटो ड्राइवर्स की मुकम्मल हिमायत हासिल हुई है। ऑटो ड्राइवर यूनियन की जानिब से 26,000 रुपये का अतिया चेक BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव KTR को पेश किया गया। इस मौके पर KTR ने ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की और उनके मसाइल पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और BRS पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। KTR ने ऑटो यूनियन की तरफ से दी गई माली मदद कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि अब की तरफ से ये बड़ा ताउन नहीं चाहिए, बल्कि ये इमदाद उन ऑटो ड्राइवरों के खानदानों को दी जाए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ఆటో వాళ్ళ తరఫున మన పార్టీ తరఫున మీరు బాగా కొట్లాడారు, ఇంకా కొట్లాడాలి. మా సమస్య పరిష్కారాల వరకు మా ఏమంటే మీరు ఉండాలా, మీ ఏమంటే మేము ఉంటాం. సమస్య పరిష్కారం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పోవాలి. అందరు పెడితే ఈ డబ్బులు మాకు ఎందుకంటే పార్టీ మీకు సాయం చేయాలి. చనిపోయిన 100 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకు మేము సాయం చేస్తాం. మీరు మాకు ఇది చాలు, మీరు ఇచ్చింది చాలు, మీ మద్దతు చాలు, సంఘీభావం చాలు, మీరే పెట్టుకోండి. పార్టీ తరఫున ఆటో డ్రైవర్లకు మేము అండగా ఉంటాం. ఆ చనిపోయిన కుటుంబాలకు కూడా మేము సాయం చేస్తాం. మీరే పెట్టుకోండి. ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ లిస్టు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పిన, పట్టించుకోలేదు, స్పందిస్తలేదు. ఆ చనిపోయిన కుటుంబాలకు మా పార్టీ తరఫున తప్పకుండా రేపు ఎల్లుండి నేను అనౌన్స్ చేస్తాను. సార్ని అడిగి మేము నిలబడతాం తప్ప మీ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకొని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాం. మీరు చెప్పిన మద్దతు చాలు.
ग्रुप 1 प्रीलिम्स में एक हाल टिकट नंबर दिया गया जबकि मेंस में दूसरा हाल टिकट नंबर दिया गया। ऐसा क्यों? भारत में कहीं भी इम्तिहान हो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक ही हाल टिकट नंबर होता है। तेलंगाना में होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहानात में भारत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई है। एक ही सिलसिले में आने वाले 654 उम्मीदवारों को एक जैसे नंबर दिए गए और एक और सिलसिले में आने वाले 702 उम्मीदवारों को भी एक जैसे नंबर मिले। ये कैसे मुमकिन है? अगर बीजेपी लीडरों को वाकई तेलंगाना के नौजवानों की फिक्र है तो फौरन ग्रुप 1 इम्तिहान के स्कैंडल पर सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। बीआरएसएमएलए पिड कोशक रेड्डी। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్ అనేటి నిర్వహించిన తర్వాత ఫస్ట్ హాల్ టికెట్ ఇస్తారు. ప్రిలిమ్స్లో ఒక హాల్ టికెట్ నంబర్, మెయిన్స్లో ఒక హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎందుకు ఇచ్చిర్రు? నంబర్ 1. అసలు భారతదేశ చరిత్రలోనే, తెలంగాణలోనే కాదు భారతదేశ చరిత్రలోనే ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా, ఎక్కడ కూడా మెయిన్స్ రాసినా ప్రిలిమ్స్లో ఉన్న హాల్ టికెట్ నంబరే మెయిన్స్లో కూడా హాల్ టికెట్ ఉంటుంది. మరి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా, వాళ్ళ పేరు చెప్పదలుచుకోలే కానీ హాల్ టికెట్ నంబర్ చూడొచ్చు. ఈ పైనది ఉన్నదేమో ప్రిలిమ్స్లో ఉన్న హాల్ టికెట్ నంబర్, కింద మెయిన్స్లో ఇంకొక హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎందుకు ఇష్యూ చేయాల్సి వచ్చింది? దీంతోనే ఈ హాల్ టికెట్ చేంజ్ చేయడంతోనే ఈ స్కామ్ అనేది మొదలైంది. నీకు ఏమంటారు, రెడీ అయింది ఇది అంత స్కామ్ అంటారు. నేను దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఎవర్. అసలు 563లో మీకు ఒకటే చెప్తున్నా, మీకు సెంటర్లతో సహా చెప్పిన ఇంతకుముందు. కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో ఉన్న సెంటర్ 18-19 సెంటర్లో 1497 మంది రాస్తే 74 మంది వస్తే ఉద్యోగాలు అలా ఉట్టి మహిళలతోనే ఎందుకు రాపించిర్రు? అలా పురుషులు అబ్బాయిలు ఎందుకు లేరు? వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్? ఏ సెంటర్లైనా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలిసి రాస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్? ఇది పెద్ద స్కామ్ భయ్. వాళ్ళు రెడీ అవుట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద స్కామ్. ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయాలంటున్నాను నేను. ఇవాళ హాల్ టికెట్ నెంబర్ 472, 471 చెప్పిన అందరికీ 654 మంది అందరికీ సేమ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. అబ్బాయి ఎక్కడన్నా ఇంకొక హాల్ టికెట్ నెంబర్ చెప్పిన 201 నుంచి ఏదో చేంజ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ చెప్పిన అది 702 మందికి సేమ్ మార్క్స్ ఉంటాయా? ఎట్లా వస్తాయి సేమ్ మార్క్స్? ఒక్క మార్కు తప్పు లేకుండా సేమ్ మార్క్స్ ఉంటాయా? అది ఎట్లా సాధ్యము? ఇది 100% దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఇన్ తెలంగాణ. 100% ఇది ఖచ్చితంగా రద్దు చేయాలి. దీని మీద జ్యుడిషియరీ ఎంక్వైరీ అయినా చేయాలి, లేకుంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయినా చేయాలి. ఈ రాష్ట్రంలోనే కేంద్ర హోంమంత్రి ఈ రాష్ట్రం నుంచే ఉన్నారు, బండి సంజయ్ గారు. మీ బీజేపీ పార్టీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే దీని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయ్యండి అంటున్నా నేను. 125 फुट ऊंचे डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को खराज पेश करने गई एमएलसी के कविता को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने उन्हें पहले मंजिल फर्स्ट फ्लोर तक जाने की इजाजत नहीं दी। जय भीम के नारे लगाते हुए कविता और बीआरएस कारकुनान मुजस्समे के सामने धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने एमएलसी कविता समेत चंद अफराद को पहले मंजिल तक जाने की इजाजत दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर सख्त लफ्जी वार। गुची बावली के जंगलाती इलाके की नीलामी पर तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गुची बावली के कुंचा इलाके में 400 एकड़ जंगलाती जमीन नीलाम करने के फैसले पर खामोशी तोड़ दी है। ये जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब वाक़ है। हरियाणा में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने रियासती हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी की। उनका कहना था कि मरकज़ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशं है, जबकि कांग्रेस की रियासती हुकूमत जंगलात को तबाह करने पर ताली हुई है। वजीर आजम ने रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय जंगलाती ज़मीनों पर बलडोज़र चलाने को तरजीह दे रही है। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के दो मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है
जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कश्मीर कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े मरूफ होटल पार्क हयात में आज पीर 14 अप्रैल को आग भड़क अलिफाटे है। इत्तलात के मुताबिक आग होटल की पहली मंजिल पर लगी, जिसके बाद होटल के अंदर और इर्द गिर्द के इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। वाक़ये के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम तेजी से जारी है। पार्क हयात होटल में इस वक्त IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद क़याम पजीर है, जिसकी मौजूदगी से सूरत-ए-हाल मजीद संजीदा हो गई है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम मेहमानों और खिलाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हुक्काम ने वाक़ये की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है ताकि आग लगने की असल वजह मालूम की जा सके। फलकनुमा का रिहायशी नौजवान मोहम्मद मिसी अल्दीन बहिमाना कत्ल का शिकार। हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां फलकनुमा का रिहायशी और रोडी शेटर मोहम्मद मिसी अल्दीन को नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। मोहम्मद मिसी अल्दीन की शादी 17 अप्रैल 2025 को तय थी और वो अपनी शादी की दावती कार्ड्स तकसीम करने निकला था। वो जब डिलक्स मेडिकल हॉल के करीब पहुंचा तो वहीं इसे निशाना बनाया गया। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर मोहम्मद मसीउद्दीन का मर्डर हुआ, ये रेड बाजार PS लिमिट्स में। इसका इंफॉर्मेशन आते ही हम सब लोग यहाँ पहुँचे। इसका जो भी जिम्मेवार होता है उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। जो भी लीगल कार्रवाई होना चाहिए उसका डेफिनेटली हम करेंगे। थैंक यू। मैडम इनका नाम, डिसीज का नाम? मोहम्मद मसीउद्दीन। उनके ऊपर केसेस है, फलकनुमा PS के राउडी शीटर है। रिवेंज मर्डर है मैडम? वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ओके मैडम, थैंक यू। आज मेरा भाई मोहम्मद मसीउद्दीन को रविलपुरे के वाला दौड़ाने पड़े, जिसमें सबसे बड़ा हाथ इसमें पैसे देने वाला मार्केट का जुगेल है अमजद सारीज हाउस। ये मैं जो नामा बोल रहा हूँ, ये मेरे भाई को मैं सुधार लेकर शादी करने वाला था। 2 दिन में उसकी शादी थी। आज उसको होना बोल के पुलिस वाले मिला के कैसा मारे वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अगर 18 जने 20 जने आप लोग एक बार उसको देखो, बहुत बुरा मारे। मैं मेरे भाई को जान से बचाऊंगा। बेटा था मेरा आज पुलिस वाले उसको बंद कर दिए। दूसरे जनों को बोल के पुलिस वाले मैं मेरे भाई को सुधार करने वाला था। मेरे भाई को काम कारोबार 25 साल के दिया, मेरा भाई सुकून देता, मगर मेरे भाई को मारे। ये 18-20 जने मिलकर मारे, जिसमें कई लोग आप पैसे भी दिए बोल के मालूम हो रहा आप। उसमें मार्केट का पटेल मार्केट का अमजद वाला जुनेद भी है बोल के मालूम हो रहा। उन्हें तो खा रहा उससे, उन्हें 6 साल मारने वाला, उन्हें वो ये जो पूरे आप लगा किससे भी पूछ लो उसकी यहाँ पर दुश्मनी सीधे नहीं। सब उससे खुन्नस खा रहे थे, सब उससे खुन्नस खा के मारना चाहे। मेरा भाई बहुत शरीफ था, मेरा भाई शरीफ हो गया था बहुत। मेरा भाई बहुत शरीफ, कुछ भी नहीं कर रहा था, अकेला भी लग रहा था, अकेला रह रहा था, शादी कर रहा था। मेरे भाई को मारने लगा। 2 दिन में 17 की शादी थी। आज रुके बाटा रविलपुरे में, आज वही गुल्ला मारने लगा दी। देखो आप इतना बुरा खून निकाल लिया, खून निकाल दिया। यहाँ पर DCP मैडम, कमिश्नर सर आए तो बात करता हूँ। ये जो आजकल ऑफिसर है राघवेंद्र सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे बात कराता हूँ। उन्होंने बोले इसकी शादी करा दो, इन्हें सही हो जाता। शादी कराया, शादी में बिजी कर दिया उसको, कुछ भी नहीं उन्हें उसके पीछे। अगर पुलिस वाले मारने लगा दिए, वो एरिया वाले मारने लगा दिए।
किसी के ऊपर शक है आपको? ये डबिलपुरे के लोग हैं इसके अंदर, और ये मार्केट में, पटेल मार्केट में जुनेद भी बोल के उन्हें भी कराने लगा कहते, मैं सुना उन्हें पैसे दे रहा करते, उसको मारो बोल के पैसे दे रहा करते, उसको भी उठो। ऐसे क्या दुश्मनी हो सकती है इसमें पैसे देने के, ऐसा काम कराने के लिए? कुन्ना से उन लोगों को इन्हें शादी कर रहा, इन्हें सुकून से रह रहा, उन लोगों के कामा नहीं कर रहा, इन्हें असल मसीह रोडी शीटर उन लोगों को बनाए थे, उन लोगों के कामा नहीं कर रहा, उन लोगों के कामा करा। विजयवाड़ा वायसुग में दिल दहला देने वाला वाकया, शौहर के जुल्म का शिकार हामला बीवी। पीएम पालम पुलिस स्टेशन हुदूद में मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़े ज्ञानी और अनुषा के दरमियान कुछ दिनों से झगड़े चल रहे थे। झगड़ों के नतीजे में ज्ञानी ने 9 महीने की हामला बीवी अनुषा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में ज्ञानी ने कत्ल का एतराफ किया, जबकि अस्पताल पहुंचने तक अनुषा की मौत हो चुकी थी। पीने का पानी न आने पर खाली बाल्टियों के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस लीडर। नागर करनौल जिला के नवाबपेट मंडल के रुखमपली गांव में 3 माह से पीने का पानी न आने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना, खाली बाल्टियों के साथ सड़क पर उतरे गांव वाले। इस हुकूमत से तो पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा। देहातियों की हिमायत में धरने पर बैठे कांग्रेस मंडल सदर नीरटी रामचंद्रुआ। मुदुनपली में 70 साला सैयद जफर हुसैन ने तन्हाई और बेजारी के बाइस इतवार के रोज अपने घर में गर्नल से लटक कर खुदकुशी कर ली। वो बीवी और बच्चों के साथ रहने को पसंद नहीं करते थे और अकेले ही अपने मकान में रहते थे। मकामी अफराद ने वाकया देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और अहले खाना को मतला किया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में वाक़ 30 साला कदीम मदरसा मुनहदिम, वक्फ तरमीमी कानून के तहत पहली कार्रवाई। मध्य प्रदेश के जिला पन्ना से एक अहम खबर सामने आई है, जहां बीडी कॉलोनी में वाक़ एक पुराना मदरसा हफ्ता के रोज मुनहदिम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह वाक़या हाल ही में नाफिज किए गए वक्फ तरमीमी कानून के तहत अमल में आया और ये पहला मुस्लिम ज़ेरे मलकियत ढांचा है जिस पर इस नए कानून के तहत कार्रवाई की गई। मज़कूरा मदरसा तकरीबन 30 साल से कायम था, ताहम मकामी हुक्काम का कहना है कि ये तामीर गैर कानूनी थी। नए कानून के इतलाक़ के बाद ये इलाका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरा इख्तियार में आ चुका है, जिसके बाद इस इमारत को गैर मजाज करार दे दिया गया। दूसरी जानिब मदरसा के मालिक का दावा है कि ये इमारत मकामी ग्राम पंचायत की इजाज़त से तामीर की गई थी। ताहम नए कानून के खदशात को देखते हुए उन्होंने खुद ही ज़ाती तौर पर बलडोज़र मंगवाकर इमारत को मुनहदिम कर दिया ताकि इंतज़ामिया की बराह रास्त मुदाखलत से बचा जा सके। इस वाक़ये के बाद वक्फ तरमीमी कानून के असरात और मुस्तकबिल में दीगर मजहबी बरादरी के इदारों पर इसके मुमकिना असरात पर बहस शुरू हो गई है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल मज़ीद कार्रवाइयों में इस कानून के दायरे में दीगर इमारात को लाने से मुताल्लिक़ कोई वजाहत नहीं दी गई है। निर्मल। तेलंगाना के जिला निर्मल के नटराज मिल इलाके में एक खातून से सोने की चीन छीनने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों में से एक को मौके पर मौजूद राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक खातून सड़क से गुजर रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान इसके करीब आए और उसके गिले से तलाई जेवर छीन कर फरार होने की कोशिश करने लगे। खातून ने चीख व पुकार की, जिस पर राहगीर मुतहर्रिक हो गए और एक नौजवान को दबोच लिया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े गए नौजवान की शहरियों ने खूब पिटाई के बाद अज़ां इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़ में शादीशुदा खातून की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया। पोतेलापटूफ की रहने वाली यास्मीन ने सीतीजा से मोहब्बत की शादी नीलोर में की थी और कल वो वालिद के शदीद बीमार होने की इत्तला पर मैके गई थी, जहां इसकी मौत हो गई। वालिद के बदनामी लाई हो कहने पर यास्मीन ने खुदकुशी की, ऐसा इसकी मां का कहना है, मगर पुलिस के मुताबिक घर में फांसी के शवाहिद नहीं मिले। यास्मीन की मां और बहन पुलिस की हिरासत में है, जबकि वालिद और दीगर रिश्तेदारों की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले को इज्जत के नाम पर कत्ल के जाविये से देख रही है।
आज 14 अप्रैल है। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हमने पहले पार्लियामेंट में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए, फिर मरकजी हाल में खराज अकीदत पेश करना था। वक्त वजीर आजम मोदी की सहूलत के मुताबिक बदला गया, लेकिन वो फिर भी मरकजी हाल नहीं पहुंचे। कांग्रेस सदर ने बाबा साहिब को खराज पेश करते हुए कहा कि आज हम 5 अहम मुतालिबात करते हैं, जिनमें ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी, सब प्लान की बहाली, रियासती रिजर्वेशन को शेड्यूल 9 में शामिल करना, प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन को कानूनी हक बनाना और ख्वातीन रिजर्वेशन में SC, ST को भी शामिल करना शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी उन मुतालिबात के लिए सड़क से पार्लियामेंट तक जिदोजहद करेगी। यही बाबा साहिब को सच्चा खराज होगा। चुनौती देख रहे, आपको सबको मालूम है ना यहाँ पर क्या है। अरे संविधान में दलितों के सुरक्षा के लिए अनेक आर्टिकल्स हैं, कानून भी बनाए गए हैं। जब उसका पालन नहीं हो रहा, और यहाँ तक कि एक उदाहरण आपको मालूम है, जो राजस्थान का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राम मंदिर में जाता है राजस्थान के, तो उसको जाने के सीढ़ी उतरते ही उस मंदिर में गंगा जल डालकर उसको पवित्र किया जाता है। और ये मालूम है मोदी जी को हर जगह ऐसे चलती, और लोगों की अपेक्षा ये है कि मोदी जी कम से कम अपने आप को बैकवर्ड क्लास के नेता समझते हैं, तो ये जो अस्पृश्यता है, अछूतपन है, इसको ये निकालेंगे। ये तो अपेक्षा लोगों की थी, लेकिन ये बैकवर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने अनटचेबिलिटी निकालने की कोई कोशिश नहीं की। एट्रॉसिटी का जो अट्रॉसिटीज जो हो रहे हैं उसको बंद नहीं किए। रेप महिलाओं पे हो रहे हैं, खासकर दलित महिलाओं पे भी बड़े अत्याचार हो रहे हैं, और दूसरे महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे। इधर वो देख रहे नहीं, सुन रहे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कानून का, संविधान का रक्षा करने में विफल हो गए हैं, ये मेरा कहना है। और खासकर 14 अप्रैल हम आज संसद में उनके मूर्ति पे पुष्पांजलि की, फिर उसके बाद में यथा प्रकार जो पहले 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कर दी। लेकिन इस बार 9 बजे ही उन्होंने डिक्लेयर किया, और 9 बजे डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम लोग वहां रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में नहीं पहुंच सके। हालांकि उनके सहूलत के मुताबिक ही ये टाइम चेंज किया गया था। अदाकार सलमान खान को एक ताज़ा धमकी मौसूल हुई है, जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर इतवार के रोज भेजी गई। पैगाम में उनकी गाड़ी पर बम हमला और रहाइश पर जिस्मानी हमले की धमकी दी गई है। वर्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की दफात के तहत मुजरमाना धमकी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये वाकया लॉरेंस बिशनोई गैंग से जड़ी पहले की धमकियों के सिलसिले का ही हिस्सा समझा जा रहा है।